वेलकम पास्टर। नमस्ते। नमस्ते। आप कैसे हैं? अच्छे हैं पास्टर। आप चलते आई डोंट नो हिंदी। उसके बाद और मुझे हिंदी मालूम नहीं है। Everybody, do you know Korean the namaskar? सबको ही आप कोरियन में नमस्कार कैसे बोलते हैं जानते हैं? Let's learn Korean this morning. आइए आज सुबह थोड़ा कोरियन सीखेंगे। Uh, now you will repeat. 안녕하세요. आप बोलेंगे अन्यंग हासेयो। Yeah, I think mic would be closed. That's why I cannot hear. शायद सबका माइक बंद है इसलिए मैं सुन नहीं सकता। Yes, but once again, let's do. 안녕하세요. फिर से बोलेंगे अन्यंग हासेयो। Yeah. As I say to you namaskar, you also can say 안녕하세요. मैं आप लोगों को जैसा नमस्कार बोला आप भी अन्यंग हासेयो कह सकते हैं। Yeah, actually like a chicken curry that I just actually ate for the first time. Yes, it will be little unnatural. जैसा मैं पहली बार जब चिकन करी खाया उसी प्रकार ये भी अस्वाभाविक अनुभव होगा। First time when I had chicken curry, yes, it was actually a little strange to me. तो मैं जब पहली बार चिकन करी खाया था तब ये मेरे लिए थोड़ा अद्भुत था। When I used to eat chicken curry, that time I came to like a chicken curry a lot. लेकिन जब मैं चिकन करी खाने में मेरा आदी हो गया तो मुझे खाने को बहुत पसंद आया। Actually, other people they do not understand what's the taste of chicken curry when you eat with certain tearing chapati. अनेक लोग इस चिकन करी का स्वाद को नहीं जानते हैं। जब आप चपाती को फाड़ के चिकन करी के साथ खाते हैं उसका स्वाद क्या है। Yeah, he who knows about its taste knows it, but he who doesn't know it doesn't know. जो उसका स्वाद जानता है वो जानता है, जो उसका स्वाद नहीं जानता है नहीं जानता है। You see, you go to the actually mountain, then mountain here will eat only bitter herb. आप जंगल में जाएंगे तो खरगोश सिर्फ कड़वा साग पात को ही खाता है। If you give the sugar to the mountaineer, it will never eat. अब जंगली खरगोश को अगर आप शक्कर देंगे वो नहीं खाएगा। How sugar is so sweet like that. ये शक्कर कितना मीठा है। You know, for the mountain here, bitterness is very sweet. ये जंगली खरगोश के लिए कड़वा साग पात उसके लिए बहुत स्वादिष्ट है। Yes, tongues are different like that. यानी कि जीभ बहुत अलग है, जीभ। Yes. There in India, you drive sitting on the right side of your car to the left of the road. भारत में आप गाड़ी में दाएं तरफ बैठते हैं और सड़क के बाएं तरफ आप चलाते हैं। Here in Oman, yes, driver's seat is placed on the left, but they drive on the right road. लेकिन ओमान में ड्राइवर का सीट गाड़ी का बाएं तरफ होता है लेकिन सड़क के दाएं तरफ वो चलाते हैं। Here you must drive, yeah, where? On the right side. यानी कि आपको यहाँ सड़क के दाएं तरफ आपको गाड़ी चलाना है। Yes, when you drive on the right side here in Oman, yes, you are a very good keeper of the traffic rule. तो ओमान में आप जब दाएं तरफ गाड़ी चलाते हैं सड़क में तो आप ट्रैफिक नियमों को बहुत अच्छे से मानने वाले हैं। India, all these people will be arrested as a murderer. लेकिन भारत में होगा तो इन सारे लोगों को हत्यारा बोल के अरेस्ट किया जाएगा। Because they drive reversely in India only. क्योंकि भारत में उल्टे हाथ में वो गाड़ी चलाते हैं। Yes, between God and us, our thoughts are not same. उसी प्रकार परमेश्वर हमारे बीच में भी हमारा सोच समान नहीं है। Yes, if God's thought also is the same as my thought, then it would be very easy actually to believe. No need to actually believe. अगर ऐसा होता कि परमेश्वर का सोच और हमारा सोच समान होता तो विश्वास करना कितना आसान होता, मुश्किल नहीं होता। To believe in the word of God once, my thought should be denied exactly. परमेश्वर का वचन को विश्वास करने के लिए एक बार तो मेरा सोच को स्पष्ट रूप से इनकार किया जाना जरूरी है। Yeah, my thoughts are not the thought of God's thought. और मेरा सोच
और परमेश्वर का सोच नहीं है। So this word of God is written Isaiah chapter 55 verse 8. तो ये वचन यशायाह 55 का 8 वचन में लिखा है। So before believing in Jesus Christ, we must have the testimony how I came to forsake my thought. इसलिए यीशु मसीह को विश्वास करने से पहले हमारे पास भी ये गवाही होना चाहिए कि कैसे मैंने अपने सोच को इनकार कर पाया। You know, if my thought and the word of God are compared to a different husband, अगर मेरा सोच और परमेश्वर के वचनों को अगर हम दोनों स्वामी के रूप में अगर तुलना करेंगे, sleeping with the husband named thought, I cannot sleep with the husband named the word of God. तो मैं सोच नाम का पति के साथ सोकर परमेश्वर का वचन नाम का पति के साथ मैं सो नहीं सकता। Because the thought, husband thought will tell me, hey, you must sleep with me, you are my wife. क्योंकि सोच मुझे बोलेगा तू मेरे साथ सोना चाहिए, तू मेरा स्त्री है, ऐसा बोलेगा। No, husband, the word of God will tell you, no, no, he is not your husband, I am your husband, you should sleep with me. तब परमेश्वर का वचन बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तेरा पति हूँ, तू मेरे साथ सोना चाहिए। Sometimes, you know, you meet the vegetarian. तो कभी कभी आप कुछ शाकाहारी लोगों को मिलेंगे। Hello, sir, what would you like? तो हेलो सर, आप क्या पसंद करेंगे? Yes, I like veggie food. हाँ, मुझे शाकाहारी खाना पसंद है। No, actually, I am non-veggie. नहीं, मैं मांसाहारी हूँ। But problem is that non-veggie can eat vegetable food, but vegetarian cannot eat non-veggie. लेकिन अद्भुत बात है कि शाकाहारी लोग मांस को नहीं खा सकते, लेकिन मांसाहारी लोग शाकाहारी खा सकते हैं। That's why to have same food at the restaurant where you have to go. अगर आपको समान खाना है रेस्टोरेंट में, तो कहाँ आपको जाना चाहिए? Yes, both of you should go to the vegetarian restaurant. तो आपको दोनों को शाकाहारी रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। Right? Vegetarian cannot change it. They cannot eat non-veggie. और शाकाहारी लोग वो बदल नहीं सकते, वो कभी मांस नहीं खा सकते। But non-vegetarian, okay, he can eat vegetarian food. लेकिन मांसाहारी लोग ठीक है, वो शाकाहारी भी खा सकते हैं। That's why to be united with Jesus Christ. इसलिए यीशु मसीह के साथ एक होने के लिए, Without Jesus Christ, no one can go to heaven. यीशु मसीह के बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। But heaven is holy. स्वर्ग पवित्र है। That's why, you know, by meeting Jesus Christ, Jesus should have the conversion, or you should have the conversion. तो इसीलिए यीशु मसीह के साथ मिलने के लिए यीशु मसीह वो बातचीत करना चाहिए या आप बोलना चाहिए। If Jesus should be just like you, then he must be sinner because of you. यदि यीशु आपके जैसा होना चाहिए, तो यीशु मसीह को आपके जैसा पापी बनना चाहिए। But there is one place sinner can go. There is not heaven, but hell. एक जगह है जहां पर पापी लोग जाते हैं, वो स्वर्ग नहीं है, नरक है। Whether Jesus follow me, otherwise I should follow Jesus. मैं यीशु को अनुगमन करना चाहिए या यीशु मेरा अनुसरण करना चाहिए। Like a vegetarian, Jesus will never change his heart. ये शाकाहारी लोगों की तरह यीशु मसीह कभी अपना मन को नहीं बदलता है। That's why you must be born again as righteous to be with Christ and go to heaven. इसलिए आपको अवश्य नए सिरे से जन्म होना चाहिए ताकि आप धर्मी बनके यीशु मसीह के समान स्वर्ग जा सकें। Like a non-vegetarian, no, I will eat non-veggie. तो वो शाकाहारी मांसाहारी व्यक्ति के तरह नहीं, मैं मांसाहारी खाऊंगा। Then you cannot be at the same at the vegetarian actually restaurant. तो आप शाकाहारी रेस्टोरेंट में एक साथ नहीं बैठ सकते। That means, you know, between Jesus and me, who must change heart. इसका मतलब यीशु और मेरे बीच में किसका मन बदलना चाहिए? Jesus changed his heart from goodness to the evil, or I must change my heart from evil to goodness of God. यीशु मसीह उत्तमता से बुरा रूप में अपना मन को बदलना चाहिए या मैं अपना दुष्ट मन से उत्तम के मन को मैं बदलना चाहिए? That's why to have same heart with Christ. तो इसलिए मसीह के साथ समान मन रखने के लिए
we should forsake our thought. हमें अपना सोच को इनकार करना जरूरी है. With our thought, we cannot actually be with Christ in the Word of God together. हमारे सोच के द्वारा हम मसीह के साथ एक नहीं हो सकते. Yes, this is the story of repentance and faith. ये मन फिरावा और विश्वास की ये कहानी है. Amen, everybody. आमेन सब कोई. Yes. As a pastor, I'm telling you why I had to tell this story from the beginning. मैं एक पास्टर होने के नाते ये सब कह रहा हूँ. क्यों मैं शुरू से ये सब कहने लगा? We didn't read the main unit of the Bible. Okay, now we must read the Bible. Okay. हम बाइबल का मुख्य भाग अभी अध्ययन नहीं किए हैं, तो आइए बाइबल अध्ययन करेंगे. Still, I think I didn't greet you, although actually pastors from different churches. तो मैं अब तक आपको मैं अभिनंदन नहीं किया था. सारे पासवान लोग जहाँ अन्य अन्य चर्च से हैं. Now, because of the pandemic problem, so we are actually put in the jail of lockdown. हम ये महामारी के समस्या के कारण हम लॉकडाउन के जेल में बंदी हो गए हैं सब. Because of that lockdown, we came to meet very easily through the internet like this. लेकिन ये लॉकडाउन के कारण भी हम आसानी से हम इस प्रकार मिल पा रहे हैं. Really, I want to make a very good friendship with the respectable older pastors. मैं सम्मानीय आदरणीय पासवानों के साथ मैं अच्छा मित्रता बनाना चाहता हूँ. Yeah, I'm very happy with you, all the pastors. सारे पासवानों के साथ मैं बहुत खुश हूँ आप सभी के साथ. I am short and very ugly. मैं नाटा हूँ और बहुत असुंदर हूँ. But only Indians, they are very handsome and beautiful. लेकिन भारतीय लोग सब सुंदर और बहुत सुंदर हैं. Koreans' eyes are very ugly. कोरियन लोगों का आंखें बहुत असुंदर होते हैं. If I would be young, then I want to do business to import all the actually such a handsome eyes from India. अगर संभव होता तो भारत के सारे सुंदर आंखों को मैं इंपोर्ट करने का बिजनेस करता हूँ. Yeah, today we are going to read the word of God, Mark chapter 10. आज हम बाइबल खोलेंगे मरकुस 10 अध्याय. Mark chapter 10 verse 17 to 22. मरकुस 10 अध्याय का 17 से 22 तक हम अध्ययन करेंगे. Is there any pastor who can read into Hindi? Do you have a Hindi Bible? कोई पासवान है जो हिंदी में आप पढ़ना चाहेंगे? आपके पास हिंदी बाइबल हो? I don't know how to read the Hindi Bible. मुझे मालूम नहीं है कैसे हिंदी बाइबल पढ़ना है. Any pastor? कोई पासवान हिंदी में अध्ययन करना चाहेंगे? Hindi pastor, if you are there, then okay. आप हिंदी भाषावादी पास्टर हैं तो आप माइक खोल के अध्ययन करेंगे. Please read this Bible from you. कृपया ये बाइबल अध्ययन कर देंगे. Do you have Hindi Bible? आपके पास हिंदी बाइबल है? I have. Pastor Sanu from Bihari. Yes, Namaste. yes. Namaste. Namaste. Hi. Pastor Sanu. Please you read this verse, huh? Okay. पास्टर सानू अध्ययन करेंगे ये पार्ट को. जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर. तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना. उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ. यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा.
और Thank you. आकर मेरे पीछे बोले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। धन्यवाद। Thank you, Pastor Sanu. धन्यवाद Because पास्टर सानू। ओके, I don't understand Hindi, that's why I thought you finish it, but still it was not finished. मुझे हिंदी मालूम नहीं है, मुझे लगा आप खत्म कर दिए, पर वो खत्म नहीं हुआ था। Okay. ओके। अच्छा Yeah, अच्छा। one of my friend when I was young, he was working in the chicken breeding farm. मेरा एक मित्र है जो मुर्गी का वो ब्रीडिंग फार्म में काम करते थे। It was actually government chicken breeding farm. ये सरकारी चिकन ब्रीडिंग फार्म है ये, He worked as a chicken sexer. और वो चिकन सेक्सर करके में काम कर रहे थे। I think the translator doesn't know what is chicken sexer. ये चिकन सेक्सर क्या होता है मुझे मालूम नहीं है। When the chicks are hatched out from the egg, जब मुर्गियां बच्चे जब अंडे से निकलते हैं, yes, so both they are like they look alike. That's why whether they are actually female or male, actually common people cannot understand. और वो जो बच्चे होते हैं तो उनको पहचानना मुश्किल है कि ये मुर्गी है या मुर्गा है। But chicken sexer is very professional. 1 second they can directly distinguish whether this is male or female. लेकिन ये चिकन सेक्सर में जो काम करते हैं, ये चिकन सेक्सर बहुत मशहूर है, और उनका अनुभव बहुत है कि वो 1 सेकंड में पहचान लेगा ये मुर्गा है या मुर्गी है। There are 2 types of chicken in the farm. तो वहाँ 2 प्रकार के चिकन फार्म में होते हैं। One kind of chicken will be raised for the meat. तो एक प्रकार जो चिकन होते हैं जो मांस के लिए पाले जाते हैं, But some chickens will be raised for getting the egg from that. और कुछ मुर्गी होते हैं जिनको सिर्फ अंडे के लिए पाला जाता है। That's why again they were divided, and then afterwards they will be sent to the chicken poultry farm actually to get their purpose. फिर उनको भाग भाग करके फिर उनका पोल्ट्री फार्म में अलग अलग उनके उद्देश्य के हिसाब से उनको भेजा जाएगा। So whenever you go to the market, then you can find the chicken and bring it, and then you have made the chicken curry, right? आप जब भी बाजार जाते हैं, आप मांस को लेकर आते हैं और चिकन करी बनाते हैं, है कि नहीं? This chicken was raised for the purpose to provide the meat to the people. तो ये वो चिकन है जो मांस, लोगों को मांस देने के उद्देश्य से बढ़ाया गया चिकन है। But actually all the actually chicken for the egg, they should be actually raised differently. लेकिन अंडे के लिए जो मुर्गियां को बढ़ाते हैं उसको अन्य प्रकार उनको बढ़ाया जाता है। So the chicken for the egg, after finishing their actually laying eggs, then their meat is not tasty, very tough. और जो मुर्गियां को अंडे के लिए बढ़ाया जाता है, वो अंडा देने के बाद उनका मांस स्वाद नहीं होता है, बहुत कठिन लगता है। That's why chicken sexer should find whether it is male or female from the hatchery. इसलिए वो चूजा जब बनते हैं उसी समय ही ये चिकन सेक्सर को आविष्कार करना है कि ये मुर्गा है या मुर्गी है। I stood by him and I saw. तो वो जब ऐसा काम कर रहा था, मैं वहाँ देखा। Yeah, there are many chicks, thousands of chicks only. वहाँ बहुत चूजे हैं, वो चूजा को देखता है, वो हजार He हजार। directly distinguish like this side, like this side, like लेकिन this. वो In this way only. इतना माहिर है कि वो ऐसा ही सीधा ये मुर्गी है, ये मुर्गा है, इधर उधर वो भाग कर देता है। How he was able to distinguish this is male or female? वो कैसे ऐसे पहचान पाया कि ये मुर्गा है या मुर्गी है? But you know, he was a professional, almost 99% only. वो पूरा प्रोफेशनल था, 99% जैसा प्रोफेशनल। I praised him. You are really like a telemedicine. How you can know easily like that? तो मैं उसको बोला, तू सच में जादूगर के समान है, कैसे तू ऐसा जान लेता है? Actually, they have some secret to find it. तो उनको ये जानने का एक राज है, वो कैसे जानते हैं? When I went to Indian bank, जब मैं भारतीय बैंक को जाता हूँ, they inspected the
actually that note, that is a 2000 rupee note like that. वो 2000 रुपीस का नोट को ऐसा देख के हैं, उठा के पलट कर देखते हैं, परखते हैं You know whether it is a color printed or it is really printed, from the government. I don't have eyes to distinguish. तो वास्तव में वो कलर प्रिंट है या सरकार के द्वारा बना हुआ है, मुझे तो पता ही नहीं चलता है। So I asked the bank officer, how do you actually distinguish it? तो मैं बैंक ऑफिसर से पूछा, आप इसको कैसे पहचानते हैं सर? In the light, there is a hidden secret sign. This cannot be imitated by the actual the counterfeiter. तो उन्होंने बताया कि हम लाइट के सामने जब इसको लाते हैं तो वहाँ एक गुप्त चिन्ह होता है जिसको कोई भी इसको नकल नहीं कर सकता। But we know very well, like it is nothing. लेकिन हम जानते हैं कि वो कुछ भी नहीं है। Likewise, actually, distinction is the life of the spirit. उसी प्रकार ये जांचना, ये प्रभेद करना, ये आत्मा के काम है। Yes, that's why this is the spirit of evil or spirit of God. यानी कि ये दुष्टात्मा की आत्मा है या परमेश्वर का आत्मा है। As a pastor, actually, this distinction is actually good weapon, best weapon. पास्टर के लिए ये प्रभेद करना ये अच्छा हथियार है। Like a chicken sexer, through the word of God, we must be able to distinguish why this man is born again, this man couldn't be born again. तो हम वो चिकन सेक्सर की तरह हमें भी फर्क करना चाहिए कि ये क्यों उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है और ये क्यों नए सिरे से जन्म हुआ नहीं है। This one pastor who invited me gave me only 1 hour. जो पास्टर हमें इनवाइट किए हैं वो मुझे सिर्फ 1 घंटा ही समय दिए हैं। So I have only 30 minutes now. अभी मेरा 30 मिनट बस बचा है। तो 40 minutes, right? 40 minutes. 40 मिनट बचे हैं। So for 40 minutes, I must finish my demonstration. तो 40 मिनट के अंदर मेरा उपस्थापना को खत्म करना है। So okay, I'll promise as much as I can show the distinction, I will tell you today exactly. ठीक है, मैं जैसा वादा किया हूँ उसी प्रकार मैं इस प्रभेद के बारे में स्पष्ट रूप से बताऊंगा। This man is a certain ruler. यहाँ जो व्यक्ति है ये एक विशेष व्यवस्थापक है। Yes, he was शासक a very rich man. और ये बहुत धनी युवा है। How we know he was a very rich man? कैसे हम जानते हैं कि वो धनी युवक था? Bible wrote about this man, verse 22. 22 वचन में इस व्यक्ति के बारे में बाइबल लिखता है। He went away because he had great possessions. लिखा है कि वो उदास होकर चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। Yeah, he was a very rich man, right? वो बहुत धनी था, है ना? But why he had to come to Jesus Christ? पर वो यीशु के पास क्यों आया था? Because he didn't have eternal life. क्योंकि उसके पास अनंत जीवन नहीं था। Oh, his question is shown he didn't have any eternal life. उसका सवाल से ही पता चलता है कि उसके पास कोई अनंत जीवन नहीं था। That's why now we can go into his heart. अभी चलिए उसके दिल के अंदर हम प्रवेश करेंगे। He said, "Good teacher, what shall I do that I may inherit eternal life?" उन्होंने कहा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? Now, what was his question? उसका सवाल क्या है? He wanted to know what he had to do. वो जानना चाहता है कि उसको क्या करना चाहिए। Yeah, in the half of his question already, he was a person who was holding his own answer. तो आधा ही सवाल में उसका जवाब उसके ही पास है। How he knew he had to do something to inherit the eternal life? वो कैसे जान गया कि उसको कुछ करना चाहिए अनंत जीवन पाने के लिए? So reckoning him actually as a person who had to do to inherit the eternal life, he was actually bringing the actually deformed question. तो आपने आपको जो कि अनंत जीवन पाना चाहिए करके ऐसा दिखाकर वो एक बिगड़ा हुआ सवाल को ला रहा। Because he said, "Good teacher, what shall I do that I may inherit the eternal life?" क्योंकि उन्होंने पूछा, हे सद्गुरु, मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? For him to inherit the eternal life, who had to work actually? तो उसके लिए अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए किसको काम करना चाहिए? Here we must understand salvation is not the work of man, salvation is the work of God.
हमें यहाँ एक बात को समझना चाहिए, उद्धार मनुष्य का काम नहीं है, उद्धार परमेश्वर का काम होता है। But in his heart, salvation is his work. That's why he asks to inherit eternal life. What shall I do? लेकिन उसके दिल में उद्धार उसी का काम है, इसलिए वो सवाल कर रहा है कि मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। From the beginning, his examination of his heart was very wrong. शुरू से ही उसका दिल की जांच बहुत गलत है। In the hospital, examination should be exact. हॉस्पिटल में ये जांच किया जाना बहुत स्पष्ट होना चाहिए, That time God can give the right prescription. तब परमेश्वर भी स्पष्ट दवा देंगे। But from the beginning, this man's question is not right. शुरू से ही इस व्यक्ति का सवाल ही गलत है। He seemed to know what actually, at least he had to do something. तो वो जानता है, ऐसा दिखता है कि मुझे तो कुछ करना चाहिए बोल के, You know, he didn't know who had to do something. लेकिन उसको मालूम नहीं है कि किसको कुछ करना चाहिए। Yeah, in the state of his ignorance, he had to do something. He asked the question to Jesus Christ. लेकिन उसका अज्ञानता की सवाल में वो पूछ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। In his question, Jesus is not necessary. उसके सवाल में यीशु की जरूरत नहीं है। In his question, actually, what to do was actually necessary to him. उसके सवाल में क्या करना चाहिए ये उसको जरूरत था। This question is not right. ये सवाल गलत है। Question itself was wrong, like actually wrong question. ये सवाल अपने आप में ही गलत सवाल है, But that's why actually Jesus couldn't give him answer. इसलिए यीशु मसीह उसको कोई जवाब नहीं दे सके, Right? है कि That's नहीं? why Jesus said to him about actually 6 commandments from the 10 commandments again. इसलिए यीशु मसीह उसको 10 आज्ञाओं में से 6 आज्ञा को बोले, Hey, man, from these 10 commandments, your question can be found. ए व्यक्ति, तो जो सवाल किया है ये 10 आज्ञाओं में से इस आज्ञाओं में तुम्हारा सवाल का जवाब मिलेगा। Through the 10 commandments, you must bring the question. आप अगर सवाल ला रहे हो तो इन 10 आज्ञाओं में से सवाल को लाओ। But you know, you didn't keep the 10 commandments. क्या आपने ये 10 आज्ञा को नहीं माने हैं? You keep this one. नहीं माने हैं तो इसको मान लीजिए। That's why among 10 commandments, actually first 4 commandments are for God, and 6 commandments from that is actually is for man. तो इन 10 आज्ञाओं में से पहला 4 आज्ञा परमेश्वर के लिए है और बाकी 6 आज्ञा मनुष्यों के लिए है। This man said, good teacher, what shall I do to inherit eternal life? तो ये व्यक्ति कहा कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? But Jesus re-asked like that. लेकिन यीशु ने कहा उसको, why do you call me good? फिर वो सवाल में पूछा कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? With one meaning, did you call me good teacher? I don't know. कौन सा अर्थ से तू मुझे उत्तम गुरु कहा है, मुझे नहीं मालूम। You know, no one is good, but only one, that is God. कोई भी उत्तम नहीं है, केवल एक ही जन उत्तम है, वो परमेश्वर है। You said to me good teacher, then in your thinking, am I God? आपने मुझे उत्तम गुरु कहा है, तो आपके विचार में क्या मैं प्रभु हूँ? Only one who is good, that is God. Then you are not good. You must be evil. यदि एक ही उत्तम है, परमेश्वर उत्तम है, तो इसका मतलब आप उत्तम नहीं है, आप तो बुरे हैं। God is good all the time. God is good all the time. What is this meaning? I am evil all the time. इसका मतलब मैं बुरा हूँ सर्वदा। But you know, people they think God is good all the time. I also good all the time. लेकिन लोग सोचते हैं कि परमेश्वर सर्वदा उत्तम है और मैं भी कभी कभी उत्तम हूँ। That is very, very wrong. ये संपूर्ण गलत है ये, Because my thoughts are not your thoughts. क्योंकि मेरा विचार तुम्हारा विचार नहीं है। Here in the Bible you can understand with one meaning he said, you're good teacher. यहाँ आप समझ सकते हैं किस अर्थ से उन्होंने कहा उत्तम गुरु। So Jesus asked, why do you call me good? तो यीशु वहाँ कह रहा है कि मुझे क्यों उत्तम गुरु कहा?
So Jesus gave him 6 commandments from the 10 commandments again. तो फिर यीशु मसीह उनको 10 आज्ञाओं में से 6 आज्ञाओं को फिर दिए। Why? क्यों? 10 commandments is the mirror of our soul. क्योंकि 10 आज्ञा जो है हमारे मन की आत्मा की आईना है। If we stand before the actually laws of God, अगर हम नियम के सामने 10 आज्ञा के सामने खड़े होंगे, our hidden heart cannot help but be exposed like that. हमारा छिपा हुआ मन निश्चित रूप से वो प्रकट होगा, छिप नहीं पाएगा। But here Bible said like this, do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor your father and mother. जैसा यहाँ बाइबल में लिखा है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। But this man answered directly to Jesus Christ. पर ये व्यक्ति यीशु मसीह को सीधा जवाब दिया, Teacher, all these things I have kept from my youth. और सवाल करता है कि हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। That means he never committed adultery. यानी कि वो कहता है कि वो कभी व्यभिचार नहीं किया, He never murdered. कभी हत्या नहीं किया, He never stole. और कभी चोरी नहीं किया, He never bear the false witness. और कभी झूठी गवाही नहीं दी, Yes, he was not telling lie. और वो झूठ नहीं बोल रहा है, And he only honored his father and his mother. और अपने माता पिता का आदर वो करता है। Yes, people, they had zeal for God among all the Jews. तो यहाँ लोगों का धून है परमेश्वर और के प्रति, यहूदियों का भी। Then I thought, Jesus would have actually have to praise him. Oh, you did nicely. तो मैं सोचा कि यीशु भी उसका तारीफ करेगा, हाँ तो बहुत अच्छे से कर रहा है। But Jesus didn't say to him anything actually giving the praising. लेकिन यीशु मसीह उसको ऐसा कुछ तारीफ करते हुए बात कुछ नहीं बोला। So verse 21, it is said like this. और 21 अध्याय में ऐसा कहा गया, Then Jesus looking at him loved him. That's why go your way, sell whatever you have and give to the poor. यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा और जो कुछ तेरा है उसको बेच के कंगालों को दे, And you will have a treasure in heaven, and come, take up the cross and follow me. और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। I want to ask you, all the attendants. और यहाँ जो भाग लिए हैं सबको मैं कहना चाहता हूँ, Yeah, before meeting Jesus Christ, he was a person who could keep 10 commandments. यीशु मसीह को मिलने से पहले ये व्यक्ति आज्ञा को 10 आज्ञा को मान पा रहा था। Really, he was an able person to keep the law of God. Then why he cannot keep whatever Jesus commanded him right now? अगर सच में वो परमेश्वर का आज्ञा को मानने में काबिलियत आदमी होता तो अभी जो कुछ यीशु कह रहा है उसको वो क्यों नहीं मान पा रहा है? Yeah, but when Jesus asked him to do, actually, sell all his actual properties. जब यीशु ने उसको कह रहा है कि तुम जाओ अपने सारे धन को बेच डालो, But here, he went to very sorrowful away because he had great possessions. लेकिन ये उदास होकर चला गया, शोक करता हुआ चला गया क्योंकि उसका बहुत धन था। Yes, now you can understand. Now he is being revealed as a man who kept the law of God or as a man who cannot keep the law of God. अभी आप यहाँ समझ सकते हैं ये व्यक्ति कैसे प्रकट हुआ, जो व्यक्ति कभी आज्ञा को नहीं मान पाया उसी प्रकार, या कभी माना है उसी प्रकार। When he stood before Jesus Christ, he was revealed as a man, who cannot help but break all his power that he stored up. तो जब वो यीशु मसीह के सामने खड़ा हुआ तब उसका जो टावर बनाया था वो सारे यीशु के सामने गिर पड़ा। He seemed to be a person who had kept the law of God from his youth. वो ऐसा दिखता था कि वो अपनी जवानी से ही सारे व्यवस्था को मान चुका है। But when he came to Jesus Christ, yes, he was a person actually who couldn't keep the 10 commandments. लेकिन वो जब यीशु के सामने आया वो प्रकट हुआ कि वो कभी 10 आज्ञा को मान नहीं पाया है। Yes, it's very funny like that. ये बहुत
अजीब है ये, कौतिक बात है। Yeah. In the Bible, actually, whoever stood before the Lord, then directly they are revealed whether they are chaff or grain. तो जो कोई भी प्रभु के सामने खड़ा हुआ वो प्रकट हो गए, ये भूसी हैं या गेहूं हैं करके। Like a different sex of the chicken in the eyes of that chicken sexer. जैसा वो चिकन सेक्सर के दृष्टि में जो चूजा होते हैं, उसी प्रकार Yeah, this man was exposed as a person actually who couldn't follow Jesus Christ. तो ये व्यक्ति ऐसा प्रकट हुआ जो कोई की कभी यीशु का अनुसरण नहीं कर पा रहा है। Here you can understand this man was not saved by the Lord Jesus Christ. तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा उद्धार नहीं पाया। Without receiving any answer from Jesus Christ, he had to go away. और यीशु मसीह से जवाब को पाए बिना ये व्यक्ति लौट गया। Not because he couldn't sell all that he had. ऐसी बात नहीं है कि वो अपने पास जो धन था सबको वो बेच डाला, बेच नहीं पाया। Because he never wanted to be a person who cannot keep the law of God. लेकिन वो ऐसा व्यक्ति कभी बनना नहीं चाहता था जो कि कभी आज्ञा को नहीं मान पाया, ऐसा नहीं बनना चाहता था। If he said, "Hello, Jesus Christ, I misunderstood about myself." अगर वो ऐसा कहता कि हे यीशु, मैं अपने बारे में मेरा गलत फहमी था। Yes, I thought, I have kept all the commandments of God from my youth. मैं सोच रहा था कि मेरे बचपन से ही मेरे लड़कपन से ही सारे आज्ञा को मैं मान चुका हूँ। But when you gave me another commandment, I'm not able to keep it. लेकिन जब आप मुझे कोई आज्ञा दूसरा दे रहे, मैं उस आज्ञा को मान नहीं पा रहा हूँ। Yeah, I never understood about myself exactly. मैं अपने बारे में कभी सटीक रूप से समझ ही नहीं पाया था। Hello, Jesus Christ, I'm a person, who have to go to the hell only. हे यीशु मसीह, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो सिर्फ नर्क जाने के लायक हूँ। Please help me, please save me. कृपया करके मुझे मदद करिए, मुझे उद्धार करिए। Then Jesus could save him exactly. तब यीशु मसीह उसको स्पष्ट रूप से उद्धार कर लेते हैं। But worrying about this and very sorrowfully, he turned back. He's actually turned back from Jesus Christ. लेकिन ये वो बातों को चिंता करके वो यीशु मसीह से पीठ फिरा लिया। Instead of turning back from his own false righteousness. वो अपने झूठे धार्मिकता से लौटने के बदले यीशु से लौट गया। Yeah, not to break his own righteousness, he had to turn back from the righteousness of Jesus Christ. वो अपना धार्मिकता को नहीं तोड़ा, इसलिए यीशु मसीह का धार्मिकता से वो पलट गया। But he couldn't forsake his thinking that he had kept all the commandments from his youth. और आपने जो सोच था, झूठी सोच के मैं अपने जवानी से आज्ञा को माना, वो सोच को नहीं फेंका। Even though he had lived like a person who had kept all the 10 commandments from his youth, यद्यपि वो ऐसा जिया था एक व्यक्ति की तरह जो कि बचपन से ही सारे 10 आज्ञा को मानते आया है। when he stood in the sight of Jesus Christ face to face, लेकिन जब वो यीशु के पक्ष में खड़ा हुआ आमने सामने, all of a sudden he was revealed as a person who cannot follow Jesus, who cannot fulfill the commandment of Jesus Christ. अचानक वो ऐसा व्यक्ति के रूप में प्रकट हुआ जो यीशु मसीह को मान नहीं सकता, यीशु मसीह की आज्ञा को मान नहीं सकता। He admitted his behavior, but he never admitted the word of Jesus Christ. वो अपने व्यवहार को स्वीकार किया, लेकिन वो यीशु मसीह को कभी स्वीकार नहीं किया। Jesus is a doctor to the patient. यीशु मसीह एक मरीज के लिए डॉक्टर है। Yeah, but this man never wanted to be sick. He wanted to be healthy as a good person. लेकिन ये व्यक्ति कभी मरीज बनना ही नहीं चाहता था, एक स्वस्थवान व्यक्ति बनकर खड़ा रहा। If he is good, why he need a good teacher? अगर वो अच्छा है तो उसको उत्तम गुरु की क्या जरूरत है? Even though he is not listening to Jesus Christ, यद्यपि वो यीशु मसीह को नहीं सुन रहा है, even he never admitted what he couldn't do. और वो स्वीकार भी नहीं कर रहा है कि वो क्या नहीं कर सका। In the state establishing himself in the right position, even though he is not good at all, who could keep the commandment of Jesus. वो यद्यपि अपने सटीक जगह पे खड़ा होकर, सटीक स्थान में खड़ा होकर, वो ऐसा आदमी नहीं बन पाया कि जो यीशु का वो ग्रहण कर सके। Now I want to ask one question only. मैं आपको एक सवाल आपको कहना चाहता हूँ। Yeah, she would not actually committed adultery. वो व्यभिचार नहीं किया था।
That's why anyone can say he was not adulterous. इसलिए कोई भी नहीं बोलेगा क्या वो व्यभिचारी नहीं है। It is not God, who looks at the heart of man. क्या परमेश्वर मनुष्य का मन को नहीं देखते हैं क्या? This is not a matter of committing adultery or not. ये Whether व्यभिचार you are adulterous or not, that's the matter. ये बात नहीं है कि आप व्यभिचार किए हैं कि नहीं किए हैं, बल्कि आप व्यभिचारी हैं कि नहीं है। So if you read the word of God, Matthew chapter 5, यदि आप वचन को पढ़ेंगे मत्ती 5 अध्याय, it is written verse 27. वहां 27 वचन में ऐसा लिखा है, You have heard that it was said to those of old, you shall not commit adultery. तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना। This is 10 commandments, right? ये 10 आज्ञा है ना? But Jesus said, verse 28. लेकिन यीशु मसीह 28 में कहा, But I say to you that whoever looks at the woman who lusts for her already committed adultery with her in his heart. परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। Yes, not only God, Jesus was talking about the body adultery. यीशु मसीह यहाँ सिर्फ शरीर का व्यभिचार के बारे में बोलता है, ऐसा नहीं है। Yeah, even Jesus is talking about the heart adultery. लेकिन यीशु यहाँ मन में जो व्यभिचार है उसके बारे में भी कह रहा है। Yeah. Yes, it is possible for man not to actually commit adultery in flesh. हाँ, ये संभव है, इंसान शरीर में कभी व्यभिचार नहीं कर सकता है। But it is impossible for you not to be adulterous. लेकिन ये आपके लिए असंभव है कि आप व्यभिचारी नहीं बनेंगे, ऐसा संभव नहीं है। Do you know why? क्यों जानते हैं? In Adam, by eating good and evil fruit, the fact is that man died. क्योंकि आदम के अंदर भले बुरे ज्ञान का फल खाकर वास्तविक बात यह है कि आदम मर गया। In Adam who died, Satan entered. From that time, Satan became a controller of man, using I. जो आदम मर गया उसके अंदर शैतान प्रवेश करके आदम को नियंत्रणकारी शैतान बन गया। किसका नाम पे? आय, मैं बोल के। That's why heart of Satan is adulterous. इसलिए शैतान का मन जो है व्यभिचारी है। Yeah, right? समझ रहे हैं? That's why man cannot keep the law of God with the actually adulterous heart of Satan, keeping it inside of their heart. इसलिए इंसान ये दिल में व्यभिचार का शैतान का मन कर रखकर ये आज्ञा को नहीं मान सकता। Now not because this man couldn't sell all that he has. और यहाँ जो धनी युवक है वो अपने पास जो धन था वो बेच नहीं पाया, वो समस्या नहीं है। Whatever he did rightly was not actually plundered. वो जो कुछ भी सटीक रूप से क्या हूँ सोच रहा है उसको कोई छीन लिया नहीं गया। Yeah, Jesus want to take it away. लेकिन यीशु मसीह इसको निकाल के छीन लेना चाहता था, To make him revealed as a person who can do nothing. ताकि उसको प्रकट करे कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कुछ भी नहीं कर सकता। In the same Bible, when you read the story about the woman who had 12 years of flow of blood. और इसी बाइबल में ही जब हम एक औरत के बारे में पढ़ते हैं जिसका 12 साल तक लहू बहने का बीमारी था। So holding this chapter, we go to that chapter, Mark chapter 5. इसी अध्याय को पकड़कर हम मरकुस 5 अध्याय में चलेंगे। Verse 25. 25 वचन। Yes, there we can see now a certain woman had the flow of blood for 12 years. यहाँ जैसा आप देखेंगे एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। And had suffered many things from many physicians. इसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। She had spent all that she had and was no better, but rather grew worse. और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ परंतु और भी रोगी हो गई थी। Now because of whom this woman became worse and worse. ये किसके कारण ये स्त्री और मतलब बुरी हालत में चली गई? For her to be made worse, what was actually used? उसको अधिक रोगी बनाने के लिए क्या व्यवहार हुआ है? Yes, all her possessions. उसका धन। Maybe she might have the money only. हाँ, उसके पास कुछ पैसा होगा जरूर। When she stopped going to the many physicians. जब वो अनेक वैद्यों के पास जाने को बंद कर दिए।
when she lost all that she had. तो उसके पास जो भी धन था वो सारे जब खो दिया, Then after that, when she became worse and worse, और ये जितना मतलब और बाद में जैसे ही रोगी और रोगी बनती गई, by whom she became much worse. और किसके द्वारा ये अधिक और अधिक बर्बाद हो गई, By many doctors. अनेक डॉक्टर लोगों के द्वारा. These are not doctors who healed of her healed her of her that flow of blood. तो ये वो डॉक्टर लोग नहीं है जो उसको वो खून की बीमारी से उसको चंगा किए. This doctor made her much worse and worse, not better at all. तो ये डॉक्टर लोग उसको और उसको बर्बाद कर दिए कि ताकि वो कभी और चंगा नहीं हो पाए. And then these actually doctors, stole her all health and self-confidence. तो ये डॉक्टर लोग जो इस औरत के अंदर आत्मविश्वास था, उन सारे चीजों को उन्होंने जो हरा दिया, खत्म कर दिया. Then, she came to hear the news of Jesus Christ, who's gonna pass by there. फिर उसके बाद ये औरत यीशु उधर से जा रहे हैं बोल के उन्होंने खबर सुनी. Yes, now you see. फिर आप यहाँ देख सकते हैं verse 27. 27 वचन में, When she heard about Jesus. और जब वो यीशु की चर्चा सुनी, Yeah, when she came to hear Jesus. तो कब वो यीशु के चर्चा सुनी, When she's lost all things. जब वो सारे धन खो दी उसके बाद, When she became worse and worse. और जब और वो रोगी बनती गई उसके बाद. Before hearing the news of Jesus Christ, what happened to her? तो यीशु का संवाद सुनने से पहले उसको क्या हुआ था? There was a time she met many physicians and lost all her health and her money also. वहाँ एक समय है जब वो अनेक वैद्यों से मिलकर अपना स्वास्थ्य को भी खोया, पैसा को भी खोया. How she could be much worse because of many physicians like that. तो फिर अनेक वैद्यों को वो मिलकर कैसे अधिक और बीमारी बन गई है. You can find there are two kinds of different doctors here in the Word of God. तो इस वचनों में आप दो भिन्न डॉक्टर लोगों को आप देखेंगे. One is a free doctor without any cost. That is a doctor of grace named Jesus Christ. एक यहाँ डॉक्टर है, फ्री से वो चंगा करते हैं, कोई दवाई जरूरत नहीं है, सेंत में वो चंगा करने वाले अनुग्रह का यीशु मसीह. He never received any money from her hand. वो उसी की औरत से कुछ भी पैसा नहीं मांगा. You right? Yeah. ठीक है. Yeah. She was very much serious. She became worse and worse. वो बहुत सीरियस हो गई और अधिक बीमार बन गई. No matter how serious patients are, regardless of the actually severity, this is the right doctor who has the power to heal of all the sickness. चाहे बीमार कितना भी बीमारी क्यों ना हो, परंतु इस डॉक्टर के पास सामर्थ्य है कि उसको बिना मूल्य से उसको चंगा करे सारे बीमारी. It shows that how much dirty sin man has, regardless of actually its dirty degree. Yes, it is Jesus Christ who has the power to cleanse all the sin. अगर वहाँ गंदगी को नापने की चीज हो तो उसके तुलना में भी चाहे जितना भी उसका गंदगी पाप क्यों ना हो, यीशु के पास सामर्थ्य है कि उसका पाप धोने का. Through whom her health became worse and worse. किस वैद्य के द्वारा उसका स्वास्थ्य बिगड़ता गया और बीमार पड़ गए वो? Through many physicians. अनेक वैद्यों के द्वारा. Yes, just like that, 10 commandments are many physicians. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10 physicians. तो यहाँ ये अनेक वैद्य 10 आज्ञा की तरह 1, 2, 3 इस प्रकार और 10 तक 10 आज्ञा की तरह अनेक वैद्य हैं. It's not that through many physicians you should be healthy. If you are healthy from 10 physicians, then you don't need to actually go to Jesus Christ. ऐसी बात नहीं है कि इन अनेक वैद्यों के द्वारा आप भले चंगे हो जाएंगे. अगर आप इनके द्वारा भले चंगे हो जाएंगे तो आप यीशु के पास कभी नहीं जाएंगे. Amen. आमेन. That you must actually lose all your possibility and self-confidence from 10 physicians. That is 10 commandments. तो इन 10 वैद्यों से आपका
धन भी खत्म होना चाहिए, अपने ऊपर आत्मनिर्भरता की जो विषय है वो भी खत्म हो जाना चाहिए। ये 10 आज्ञा अनेक वैद्य हैं। It's not that you should be a person actually who try to keep the law of God. ऐसी बात नहीं है कि आप ऐसे व्यक्ति बनने की कोशिश करना चाहिए जो आज्ञा को मानने की कोशिश करते हैं। As it is written in Romans chapter 3 verse 20. जैसा रोमी 3 का 20 में लिखा हुआ है, No flesh will be justified by the deeds of the law. हाँ लिखा है कि व्यवस्था के कर्मों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, For by the law is the knowledge of sin. क्योंकि व्यवस्था से पाप की पहचान होती है। Likewise, this woman from many physicians, she was revealed as a worse patient. तो ये औरत भी अनेक वैद्यों के द्वारा सबसे अधिक रोगी के रूप में प्रकट हुई। Yeah, that's why she lost all the money also. इसलिए ये बहुत से सारे पैसा को खो दी। That time, a news of Jesus Christ came upon her. तब यीशु मसीह का सुसमाचार उसको सुनाई दिया। So from behind, when she touched the edge of the robe of Jesus Christ, directly the power came out of Jesus and she was healed. तो फिर वो यीशु का पीछे से वस्त्र को थोड़ा छू ही लिए तो वो यीशु का सामर्थ्य पूरा उसके पास आ जाता है। It's not that you yourself should try to do something for the salvation. आप अपने उद्धार के लिए आपने से कुछ करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। Very oppositely, whoever is just slightly touched with the righteousness of God, then you can be justified. लेकिन जो कोई भी प्रभु का धार्मिकता के द्वारा स्पर्शित हो जाता है वो धर्मी गिने जाते हैं। Amen. आमीन कि नहीं? Okay. Yeah. ठीक है। Now you think about this. These two different scriptures shows two different persons. तो यहाँ दो भिन्न वचन, ये दो भिन्न प्रकार के लोगों को दिखाता है। This woman was actually saved by the Lord Jesus Christ. तो ये औरत क्या है? यीशु मसीह के वचनों के द्वारा उद्धार पाई है। Mark chapter 10 verse 17, this man was not born again. तो मरकुस 10 अध्याय का ये धनी युवक को उद्धार नहीं पाया, नए सिरे से जन्म नहीं हुआ है वो। If he was born again, then why he would be sorrowful? अगर वो born again हुआ था तो क्यों वो दुखी होता? Amen, Wana. आमीन कि नहीं? But this woman was healed of her flow of blood like that. लेकिन यहाँ ये औरत जो है अपनी खून की बहने की बीमारी से चंगी हो गई। Both of them, they met Jesus Christ. ये दो लोग यीशु को मिले हैं। One was saved, the other was not saved. एक व्यक्ति उद्धार पाई और एक उद्धार नहीं पाया। If you are a chicken sexer, this is male or female, you must be able to distinguish like that. आप अगर चिकन सेक्सर हैं तो ये मुर्गी है या मुर्गा है, आप फर्क करना चाहिए, You right? है कि But नहीं? here, we can hear one man said, I have kept all these things from my youth. आप यहाँ देख सकते हैं एक व्यक्ति कह रहा है मेरे जवानी से ही मैं सारे आज्ञा को मानते आया हूँ। But this woman will testify, I went to many physicians, very oppositely, my health became very, 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 very bad than before. लेकिन ये औरत गवाही देगी कि हाँ मैं अनेक वैद्यों के पास तो गई थी, लेकिन उनके द्वारा मेरा स्वास्थ्य और बिगड़ता गया और मैं अधिक रोगी हो गई। Yeah, the more you try to keep the law of God, then your wickedness had to be revealed as a person who can never keep any law of God. तो आप जितना ही आज्ञा को मानने की कोशिश करते रहेंगे, आपका दुष्टता अधिक और अधिक प्रकट होगा और आप दिखाई पाएंगे कि आप आज्ञा को नहीं मान पा रहे हैं। Well, you try to keep the law of God, that's the same thing. आप No change. आज्ञा को मानने की आप कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो समान बात है, कोई बदलाव नहीं है। Because Romans chapter 7, verse 14, it is said, क्योंकि रोमियो 7 अध्याय का 14 वचन ऐसा कहता है, For we know that the law is spiritual, but I'm carnal, sold under sin. हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। It's not that we don't want to keep the law of God. We want to, but regardless of our desire, we are not able to keep the law of God because we have been sold under sin. ऐसी बात नहीं है कि हम आज्ञा को मानना नहीं चाहते हैं, हम आज्ञा को मानना चाहते हुए भी हम जो है शारीरिक है और पाप के हाथ बिके हुए हैं, इसलिए मान नहीं सकते। So we should learn how to say to Jesus Christ. इसलिए हमें सीखना चाहिए हम यीशु को कैसे बोलेंगे। Oh Lord, I cannot sell all that I have. I'm not able to distribute all to the people like that. हे प्रभु, मेरे पास जो धन है मैं सब बिक नहीं पाऊंगा और ये कंगालों को मैं दान नहीं दे सकता। Jesus is for such people who say, I can do nothing.
जीसस इज Jesus is for those who Ah. say, I can do nothing. और यीशु मसीह उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। Yeah, Jesus is for actually bad people who cannot do anything good at all. जो बुरे लोग कुछ भी अच्छा ही नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए यीशु मसीह है। That's why Jesus could be the savior to the woman who was caught in adultery. इसलिए यीशु मसीह और उस औरत जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी उसके लिए यीशु मसीह मसीहा बन गया, उद्धारकर्ता बन But गया। Jesus couldn't be the savior of those Pharisees and scribes who brought that woman who was caught in adultery to Jesus. लेकिन जो लोग यीशु मसीह के पास वो औरत को लेकर आए थे, उन फरीसी और सादुकियों के लिए यीशु मसीह मसीहा नहीं बन पाया। Yes, she had the heart of sinner. उस औरत के पास पापी का मन था। People with mouth, yeah, actually they are not the people, who can say we don't have any sin, but they didn't have the heart of sinner. और लोग मुंह से नहीं बोल पा रहे हैं कि मेरे पास कोई पाप नहीं है, पर उनके दिल में पापी का दिल को भी वो नहीं रखे हैं। That's why John chapter 8 also people are divided into two groups like that. इसलिए यूहन्ना 8वां अध्याय में भी लोग दो भाग में बांटे गए हैं। Like chicks that were distinguished whether they are male or female. जैसा चूजा को विभाग किया जाता है कि ये मुर्गी है या मुर्गा है। There were also, John chapter 8 also tells a woman who was not condemned. There were people who went back without, getting the salvation from Jesus Christ, like this certain ruler. तो उसी प्रकार यूहन्ना 8वां अध्याय में भी एक औरत है जिस पर कोई दंडाज्ञा नहीं हुआ, और वहां लोग भी हैं जो फरीसी लोग जिस ये धनी व्यक्ति की तरह उधर पाए बिना चले गए। As a pastor, एक पासवान के नाते we should show the word of God to the people why this man couldn't be born again, why this man actually could be justified. तो हम भी सक्षम होना चाहिए कि हम लोगों को वचन दिखाने में कि हाँ, ये व्यक्ति क्यों पुनर्जन्म नहीं हो पाया और ये व्यक्ति क्यों धर्मी गिना गया। In the eyes of the people, actually, the woman was caught in adultery would be a much dirty sinner. लोगों के दृष्टि में जो व्यभिचार में पकड़ी गई औरत थी, ये बहुत गंदी पापी हो गई। But oppositely, Pharisees and scribes who brought her to Jesus Christ would not have committed adultery. लेकिन लोगों के दृष्टि में जो फारिसी लोग, शास्त्री लोग जो इसको पकड़ कर लाए हैं, वो कभी व्यभिचारी नहीं है ऐसा लगते हैं। Here, we can understand with good behavior, nobody can enter heaven. लेकिन हम यहाँ समझ सकते हैं कि अच्छे व्यवहार से कोई स्वर्ग नहीं प्रवेश कर सकता। Because she committed dirty sin, that's why it's not that she is unable to go to heaven. और ये औरत ने गंदा पाप की है इसलिए वो स्वर्ग नहीं जा सकती, ऐसा भी नहीं है। Then what is this meaning? तो इसका मतलब क्या है? Not because of bad work, not because of good work, only by faith to believe in the word of Jesus Christ, man can go to heaven. बुरे काम को लेकर नहीं, अच्छे काम को द्वारा नहीं, बल्कि केवल और केवल और यीशु मसीह के उद्धार के द्वारा इंसान स्वर्ग जा सकता है। Hello, pastors. I want to have actually good fellowship with you in my future. हेलो पास्टर लोग, आप लोगों के साथ मेरे भविष्य में अच्छा संगति में करना चाहता हूँ। Do you know why? Even myself also, I spent a very hard time in my life, crying, praying, fasting food, actually to get the true salvation, to get the righteousness of God. That time it was of no use. क्योंकि मेरे जीवन में भी मैं मेरे उद्धार के लिए रो कर उपवास करके बहुत कुछ किया, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ। But after I received the distinction, how to distinguish by the Spirit of God, from that time on, I started to teach it to people very boldly. लेकिन जब से मुझे उस प्रभेद को मालूम हुआ कि पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा हम कैसे फर्क कर सकते हैं, उस समय से मैं लोगों को इस सत्य को सिखाता हूँ। Finally, now 5 minutes, I'm going to demonstrate. और 5 मिनट में आपको और व्याख्यान करूंगा। John chapter 5. यूहन्ना 5वां अध्याय। Yes. Furthermore, can you read up to verse 9 within 2 minutes? ये स्पष्ट है। यूहन्ना 8 अध्याय का 1 से 9 वचन तक पढ़ेंगे, परंतु यीशु जॉन चैप्टर 5 यूहन्ना 5वां अध्याय का 1 से 9 तक पढ़ेंगे।
इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। Yes, now have you ever heard about the pond named Bethesda? आप ये तालाब के बारे में कभी सुने हैं क्या? कुंड का नाम बेथेस्दा कहलाता है। Yeah, in the Bible, this group of the people are divided into 2 groups like this. ये बाइबल में यहाँ 2 ग्रुप में लोग विभाजित हैं। One was the person who had 38 years infirmity. एक बीमारी है जो 38 साल तक बीमार में है। The other was the group of many incurable patients who wanted to be healed. वो मतलब और ग्रुप है जो चंगा होने को चाहते हैं लेकिन उनको चंगा नहीं होने का है। Yeah, Jesus came over there in the same place. और इस समान जगह पर आए हैं। But to whose eyes Jesus was discovered? लेकिन किसके आंखों में यीशु दिखाई दिए? Only to the man who had 38 years infirmity. जो व्यक्ति 38 साल का बीमार में पड़ा था, सिर्फ उसको यीशु दिखाई दिए। Yeah, fleshly, when you see other people actually who couldn't discover Jesus Christ who came there. तो विशेष करके जो लोग वहाँ यीशु के दृष्टि में दिखाई नहीं दे रहे थे। Why they couldn't find Jesus like this man? वो क्यों यीशु मसीह को इस प्रकार नहीं देख पा रहे थे? Even though all the people they wanted to be made well. तो यद्यपि वहाँ अनेक लोग भले चंगा होना चाहते थे, their direction of watching is totally opposite actually to the place where there Jesus. लेकिन there was Jesus. उनका जो दिशा है वो संपूर्ण रूप से विपरीत था। यीशु जहाँ है उसका विपरीत थे वो। Why? They tried to enter the water first among all of them. और वो क्या है, पहले पानी के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते थे, सब कोई चाहते थे। Because they are able to do. क्या इसलिए कि वो सक्षम थे इसलिए? They are incurable patient. तो वो मतलब कभी चंगा नहीं होंगे ऐसे बीमार लोग हैं। That is superficial matter, but inside of their heart still they have a strong will and decision. वो ये तो बाहिक कारण है, लेकिन अगर असली कारण को देखेंगे तो उनके अंदर अपना एक मजबूत इच्छा था, कुछ करने का निर्णय था। They are filled with force thinking. They could say, I must do, I must do, I am able to do. उनका दिल में क्या भरा हुआ था? एक झूठी सोच से भरा हुआ था कि मुझे करना चाहिए, मुझे अवश्य करना चाहिए बोल के। That's why they might have prayed to the Lord and crying actually. They would try to enter the water first. इसलिए वो कभी परमेश्वर को प्रार्थना भी किए होंगे, रो रो के पहले प्रवेश करने की कोशिश भी किए होंगे। But there was another man. लेकिन वहाँ एक दूसरा व्यक्ति था who did the same work like those people for the last 38 years. ये 38 साल तक इन लोगों की तरह करता आया था। Finally, he is a person who turned back from Bethesda. परंतु ये वो व्यक्ति है जो आखिरी में वो बेथेस्दा की कुंड से पलट गया। No matter how I try, it is of no use. I cannot do. मैं चाहे जितना भी कोशिश करूं ये बेकार है, कोई काम का नहीं। Yes, in me there is no power to enter the water first by myself. पहले तो मुझ में कोई शक्ति नहीं है कि मैं तालाब में प्रवेश कर सकूं। I'm not destroyed only with my behavior. I'm destroyed in my heart also. I'm totally in despair. मैं सिर्फ अपने व्यवहार के द्वारा बर्बाद हो गया हूँ ऐसा नहीं, मेरे दिल में भी मैं अपने से बर्बाद हो चुका हूँ। I tried to go down to the water first, but I'm a failure. No need to do like that. मैं अपनी कोशिश से मैं पानी में प्रवेश करने की पहले बहुत कोशिश किया, लेकिन मैं जाना कि मैं असफल व्यक्ति हूँ, मैं फेलर हूँ, नहीं हो सकता। Not only outwardly, just like that, circumstantially, he was not only incurable.
वो बाहरी हालात के रूप में वो अस्वस्थवान व्यक्ति था, ऐसा ही नहीं है। In heart also he was broken down. वो दिल में भी टूट पड़ा था। As a person who lost any power actually to try to do it again. जैसा कि एक व्यक्ति जो सारे सामर्थ्य को, कुछ भी करने की सामर्थ्य को खो चुका है। Like whom? किसके जैसा? Like a woman who was caught in adultery. व्यभिचार में पकड़ी गई औरत की तरह। Yes, like a woman who had 12 years of flow blood. जैसा वो 12 साल की लहू बहने की बीमारी में औरत है, उसी प्रकार I lost all things. मैं सब कुछ खो दिया हूँ। I became worse. मैं बहुत ही बर्बाद हो गया हूँ। Whatever I did became vanity. मैं जो कुछ भी किया वो सब असार है, वो व्यर्थ है। That time Jesus saved them. उस समय यीशु मसीह उसे उद्धार किए। Jesus wanted to save, but people they are not found to the eyes of Jesus Christ as a failure. यीशु मसीह उन्हें उद्धार करना चाहता तो था, परंतु यीशु के दृष्टि में ये लोग असफल हुए व्यक्ति की तरह नहीं दिखते हैं। Yes, just like that, people are divided into two groups in the Bible. तो उसी प्रकार यहाँ बाइबल में लोग दो भाग में बांटे गए हैं। We should be distinctive. हम भी उन्हें प्रभेद करने की जरूरत है। First, from the Word of God. पहले परमेश्वर का वचनों के द्वारा, second, in the church. और दूसरा चर्च में। If they are not born again, like these people, then why you couldn't be born again? We should teach it rightly. तो यदि वो अगर बोर्न अगेन नहीं हुए, नए सिरे से जन्म नहीं हुए, तो हमें उनको सिखाने की जरूरत है कि क्यों नहीं हुए हैं। Law is not given for man to keep. और ये व्यवस्था नहीं दिया गया है इंसान को कि वो आज्ञा को माने, पालन करे। Law is given to the man to know you are not able to keep. लेकिन आज्ञा इसलिए दिया गया, व्यवस्था दिया गया है कि तू नहीं कर सकता है, वो जान ले बोल के। Only there is only one way you can go to heaven, only through the offering of the body of Christ. वहाँ एक ही मार्ग है जिसके द्वारा स्वर्ग जा सकते हो, वो यीशु मसीह का देह की बलिदान के द्वारा। Like a chicken sexer. वो चिकन सेक्सर की तरह। Pastor should have the license of actually this distinction. तो पास्टर के पास इस प्रकार लाइसेंस होना चाहिए प्रभेद करने की। This is a licensed actually pastor. ये होता है लाइसेंस पास्टर। That's why your ID should be government ID, ना? Heavenly government ID. आपका आईडी भी क्या है? स्वर्गीय सरकारी आईडी होना चाहिए। So wherever you go internationally, तो इसलिए आप जब अंतर्जातीय रूप से कहीं भी जाएंगे, if you have actually international, not only international, heavenly ID, then no one can block your way. यदि आपका इंटरनेशनल आईडी है, स्वर्गीय आईडी है, तो आपका मार्ग कोई रोक नहीं सकता। Such pastor will go out of denomination and doctrine. ऐसे पास्टर लोग हैं जो डिनोमिनेशन या डॉक्ट्रिन के दीवार को पार होके जाएंगे। They will be the servant of God's truth. और वो ये सच्चा प्रभु के सच्चाई का सेवक होंगे। I just used 5 minutes more. Sorry. और माफ कीजिए, और थोड़ा 5 मिनट में ले लिया। Today this much I just gave a little. आज मैं थोड़ा सा बस आपको दे दिया। All the pastors, my door is totally open. सारे पासवानों को मेरा दरवाजा खुला है। Whatever I know also is not mine. That is God's. I received with free of cost. मैं जो कुछ भी जानता हूँ वो सिर्फ प्रभु का है, मैं उसे बिना मूल्य के पाया हूँ। I have to provide all the actually truth that I received with free of cost to all the pastors also. तो जो भी सच्चाई में परमेश्वर से सेंतमेंट पाया हूँ, सारे पासवानों को भी मैं सेंतमेंट देना चाहता हूँ इस सच्चाई को। Let's make a good friendship. आइए हम अच्छा मित्रता बनाएंगे। Let me pray. मैं दुआ करूँगा। Our Heavenly Father, by the grace of the Lord, we came to have a good time to share the little about the distinction. हमारे यशस्वी पिता, हम अच्छा समय को रखे कि हम थोड़ी सी समय में हम प्रभेद करने के बारे में हम बांट सके। In such a difficult situation of the coronavirus lockdown, Heavenly Father, take care of all the pastors who have come and attended here.
और ये कोरोना वायरस के लॉकडाउन के मुश्किल हालातों में भी परमेश्वर जितने पासवान लोग यहाँ आके योगदान दिए हैं उनको तो ख्याल रखना, उनको ध्यान रखना and give them such a wonderful way of the future so that they can have a really successful ministry. और उनका जीवन के भविष्य में भी परमेश्वर तो सुंदर भविष्य को दे कि वो एक सफलता का सेवकाई कर सकें। Today I see even from Bihar also pastor attended. आज मैं देख पा रहा हूँ तो बिहार से भी पास्टर लोग योगदान दिए हैं। Even we couldn't actually share our greeting with one another. तो हम यद्यपि हम एक आरेख से हम नमस्कार या ग्रीटिंग्स भी नहीं कर पा रहे हैं। Bless all our future and further fellowship. और हमारे आगे की संगति को और भविष्य को तो आशीष दे। In Jesus' name I prayed. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद। पास्टर के लिए हम एक बार तालियां बजा देंगे। इतना सुंदर रूप से हमें परमेश्वर का वचनों से कैसे प्रभावित करना है उस चिक सेक्सर के कहानी के से लेकर शुरू करके दिखाएं। तो सच में आत्मीय जीवन में ये प्रभावित करना बहुत ही मूल्यवान है और ख़ास करके हम जैसे सेवकों को, पासवानों को, और आज भी जितने पासवान लोग यहाँ आए हैं आभारी हूँ मैं सबको, बिहार से भी और नागालैंड से भी और नॉर्थ ईस्ट से और अनेक जगह से आए हुए हैं। इस प्रकार CLA भारतवर्ष में अनेक जगह पे हो रहा है और आज की हमारे इस मीटिंग में हम कुछ लोग जुड़े हैं, परंतु अनेक भाषाओं में अनेक राज्यों में भी अनुवादन से ये CLA का प्रोग्राम हो रहा है और आगे की भी कार्यक्रम होगा। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। और आगे की कार्यक्रम के बारे में हमारे साथ रेवरेंड डेविड हैं, उन्होंने आकर हमें आगे की सूचना को देंगे। Namaste, all respected pastor and reverend and bishop.